And we have another visual coming to light, viewers, and this is with regards to Yaqub Memon's cousin, Rauf Memon, who can be seen with the then Mumbai mayor and also Sena leader Kishori Pednekar. So those are the visuals that we are talking about. So yet another set of sensational visuals that Times Now has now accessed. Who you do see on your screens is Yaqub Memon's cousin in the one wearing the white mask there. We'll put out that detailed shot for you in just a bit. Yes, you can see that the one who's wearing a white mask and the white shirt there on your screens, those visuals of Yaqub Memon's cousin Rauf Memon with Kishori Pednekar. Let me go across to Arunil in once again. Arunil, now when are these visuals from? Take us through the timeline once again. What does this signify and what can you tell us about this very meeting, because we do see some other leaders as well if we go by these visuals very closely. Well, this is the meeting, this is the time when Kishori Pednekar had gone inside, gone to meet the Jama Masjid Trust officials. However, Rauf Memon is not part of the trust, but he met Kishori Pednekar, who was the Mumbai mayor then. This is during the COVID period, during last year. And Kishori Pednekar can be seen interacting with Rauf Memon, who is the cousin of Yaqub Memon. Now, pictures can be taken with anybody. Politicians are very much accessible, so we are not trying to draw any conclusions over here, at least on this front. But the allegation from the BJP is that help was being provided by the BMC in this to basically renovate the grave of Yaqub Memon. BMC had put in a blind eye when Yaqub Memon's grave was decorated. Now the BMC chief, Mumbai chief, is Kishori Pednekar, here been seen with Yaqub Memon's cousin, Rauf Memon, who was behind doing all this. We are still not drawing any conclusions, just putting out these pictures for our viewers. The earlier two pictures were also very important. When the chief of Bada Kabristan, Shoaib Khatib, can be seen with Aslam Sheikh, the guardian minister, who had earlier written a mercy petition for Yaqub Memon. So he wanted a kind of a reprieve with respect to the capital punishment that was been given to Yaqub Memon. Again, another picture of Shoaib Khatib with Minority Affairs Minister, then a Minority Affairs Minister, Nawab Malik. Now, a letter was been written by the whistleblowers, the two trustees, former trustees, to the Waqf board, saying that such kind of irregularities are happening. Graves are being sold to private individuals for exchange of money. Threatening activities are also happening, but the Waqf board, which comes under the Minority Affairs Minister, here Nawab Malik did not act on it. Now we have a picture of Nawab Malik with Shoaib Khatib as well. But again we are saying that pictures can be taken with anybody. Any general person can take a picture with any politician. So we are not drawing any conclusions over here. Most certainly we're not reaching any conclusions as yet, as investigations will take place and further details will come to light. But Arunil, if you can also tell us once again about Rauf Memon. Before that, let me go across to Shehzad Poonawala joining us on the phone line. Shehzad, what do you make of this? We have two set of visuals on our screens. What do you essentially make of where the BJP is going to take this up next? First is, of course, Aslam Sheikh and Nawab Malik with Shoaib, who is accused of glorifying the grave of Yaqub Memon. All right, we have Mr. Girish Mahajan first up. Let me quickly go across to him. Mr. Mahajan, what can you tell us? Because questions are being asked of the then Aghadi Sarkar. Now these visuals have come to light. Shoaib, who is accused of glorifying the grave of Yaqub Memon. Shoaib जो चीफ है बड़ा कब्रिस्तान के, वो असलम शेख और नवाब मलिक के साथ दिख रहे हैं इन तस्वीरों में. एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को सर, जिसमें दिख रहा है कि किशोरी पेडनेकर भी देखी जा सकती है राउफ मेमन के साथ, जो याकूब मेमन के कजिन है. नहीं, याकूब मेमन जो एक मैं कहूंगा कि जिसने बहुत मतलब बॉम्ब ब्लास्ट में जिसका सहयोग था, उसे सजा लग गई थी, उसे फांसी भी दी गई है, उसके रिश्तेदार है शोएब खातिम है. और इनकी तस्वीरें आप जैसे बता रहे, मैं भी देख रहा हूँ. नवाब मलिक के साथ है, महापौर के साथ में है. लेकिन ठीक है, तस्वीर तो हम पहले से शुरू से कहते आ रहे हैं कि नवाब मलिक जो है, इनके तो मतलब इनके संबंध, इनके रिलेशन
दाऊद के रिश्तेदारों से भी है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी उलझे हुए फंसे हुए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए, नवाब मलिक के लिए मैं इसे कहूंगा, क्योंकि जितने भी नवाब दाऊद के रिश्तेदार हैं उनके साथ में उन्होंने व्यवहार किए हैं, उन्होंने उनका मनी लॉन्ड्रिंग उनके साथ में हुआ है, और याकूब मेनन वगैरह तो सब एक ही टीम के लोग हैं। तो ये जाहिर है सब दुनिया के सामने कि भाई ये लोग भी उनके साथ में मिले हुए नहीं कहूंगा, लेकिन इनके साथ में इनके संबंध है, इनके साथ में इनके रिलेशन है। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि इस बात की पूरी तहकीकात होनी चाहिए, डिटेल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, एक अलग कमीशन बिठा के इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए तो भाई इन लोगों के भी क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। पहले नवाब मलिक तो बहुत जोर से कहते थे बिल्कुल मैं जेल में जाने डरता नहीं, ईडी को डरता नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाद में जो पेपर सामने आए उसी से तो ये क्लियर हो गया कि भाई इन्होंने ही सब वो मनी लॉन्ड्रिंग में ये शामिल है, इन्होंने दाऊद के रिश्तेदारों से व्यवहार किए हुए हैं, बिल्कुल मतलब 1 रुपए की चीज उन्होंने 5-10 पैसे में खरीदी हुई है, पैसे भी नहीं दिए, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये लोग इसमें क्लियर है कि मनी लॉन्ड्रिंग उनका हुआ है और इन लोगों के साथ में उनके संबंध है, इनके रिश्ते भी है। तो इसमें कोई नई बात है मुझे लगता है, लेकिन इसकी पूरी डिटेल जांच होनी चाहिए कि बाकी बातों में भी इनका क्या संबंध है, क्योंकि शोएब खातिब जो है वो भी कब्रिस्तान के कुछ वहाँ के प्रमुख है। तो ये तो जो उनको लाइटिंग लगाई गई है, जो उसका कब्र को एकदम मजार करने का जो उनका एक चल रहा था, एक वैसा ही कुछ उन्होंने कोशिश वहाँ पे की है। तो मुझे लगता है कि बस इसी सब की बात की डिटेल इंक्वायरी एक कमीशन बिठा के करने चाहिए। ऐसी मांग तो मैं मतलब हम भी कर रहे हैं, माननीय देवेंद्र जी गृह मंत्री है, माननीय शिंदे साहब है, उन्होंने इंक्वायरी भी रखी हुई है इसके ऊपर। तो मुझे लगता है सभी बातें इंक्वायरी के बाद ही सामने आएगी और स्पष्ट होगी। जी, आप इसे कैसे आगे लेके जाएंगे महाजन साहब, क्योंकि हम एक और वर्जन चला रहे हैं, कैसे जो पुराने ट्रस्टीज है, फॉर्मर ट्रस्टीज हैं, जो मेंबर्स हैं बड़ा कब्रिस्तान के, उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने यही मुद्दा वक्फ बोर्ड के सामने भी उठाया था और बोला था कि पैसे देके ये ग्रेव्स खरीदी जा रही है कब्रिस्तान में रिवैम्प करने के लिए। तो वो भी एक इशू है जो बाहर आ रहा है। नहीं, सही बात है, अभी तो बहुत सारी बातें बाहर आएगी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक कोई आवाज उठाता नहीं था, इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि सभी जो पुराने लोग हैं, उनके ट्रस्टीज है, वहाँ के जो जानकार है, वो सभी बातें भी लाके सामने बता रहे हैं, सामने भी आ जाएगी कोई बातें, इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है और कौन इसमें शामिल है, कौन इसमें प्रेशर डाल रहा था। अभी मतलब अभी याकूब मेनन जैसे देश का गद्दार ही मैं उसे कहूंगा कि जिसने इतने बड़ा कांड किया देश में, यहाँ पे मुंबई में, और उसके कब्र को मतलब इतना लाइटिंग लगाने का काम, उसका मतलब बढ़ावा देने का काम वहां पे इन्होंने किया है, उसे मजार में उसका मतलब ये बदलने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब बातें अभी सामने आएगी, अभी इसकी डिटेल जांच होगी, जिनको भी कहना है उनको भी बुलाया जाएगा, अगर जिनको नहीं सामने आना है वो ऐसे भी फोन पे भी बता सकते हैं, उनका नाम भी मतलब सामने नहीं आएगा, इस तरह से भी इंक्वायरी हो सकती है। तो इसके बाद ही सभी बातें सामने आएगी। और लेकिन लोग कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय में, तो अभी इंक्वायरी के माध्यम से जरूर ये बातें सब लोगों के सामने आएगी। जी, इंक्वायरी का वेट करेंगे महाजन साहब। पर सवाल आघाड़ी के पुराने कोई मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं भाजपा से, कह रहे हैं कि भाजपा इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अगर याकूब मेमन की ही बात की जाए तो सवाल उठा रहे हैं इस बात पे भी कि उनकी बॉडी फैमिली को क्यों वापस दी गई, इतना अच्छा अरेंजमेंट क्यों करने दिया गया जब उनके फाइनल राइट्स चल रहे थे। तो इस सब पे सवाल उठाए जा रहे हैं और भाजपा से सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, हमने बॉडी कैसे दी, रिस्पेक्ट से दी, ऐसे नहीं है। बॉडी तो पहले दफना दी गई थी, ऐसी बात नहीं, बॉडी दफना दी गई थी, लेकिन उसको जो मजार में उसका जो ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उसका काम महाविकास आघाड़ी के सरकार में हुआ है, शिवसेना के महापौर थे तब ये हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोरोना का बहाना ढूंढकर बिल्कुल वहां रातों रात या थोड़े दिनों के अंदर बिल्कुल कम समय में ये सब काम वहां पे किया गया है। इसलिए जिम्मेदार तो बिल्कुल महाविकास आघाड़ी, क्योंकि उनके समय में यह हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जो बड़ी कब्र जो है उसके जो प्रमुख है शोएब खलील, ये भी तो उन्हीं के रिश्तेदार है वहाँ के, और जो दूसरा नाम भी सामने आ रहा है वो भी उनके रिश्तेदार है, याकूब मेनन के रिश्तेदार है, वही लोग वहाँ पर है।
तो मुझे लगता है कि ये जब काम हो रहा था तब सरकार का भी काम था देखने का, महापालिका भी काम था, बीएमसी का काम था, लेकिन किसी ने वहाँ ख्याल नहीं दिया है। तो इसलिए भाजपा ने क्या क्या, हमारी सरकार थी, इसकी सरकार थी, ये बात कोई मायना नहीं रखती। लेकिन कब्र दफना तो दिया था, लेकिन उसके बाद में ये सब उसको डेकोरेटिव करने का काम इन्होंने किया है, इनके कार्यकाल में हुआ है। और ये मुझे लगता है कि जानबूझ के, मतलब इनको पता होने के बाद भी खाली तुष्टीकरण के लिए, वोटों की राजनीति के लिए ये लोग कर रहे हैं। All right, thank you so much, Girish Mahajan Saab. We have Kishori Pednekar, ex-Mumbai mayor, joining us on the phone line. Ms. Pednekar, we're putting out two visuals, and the second visual is indicative of how आप राउफ मेमन के साथ इन तस्वीरों में देखी गई हैं। तो आप क्या बता सकते हैं हमें इन तस्वीरों के बारे में? मैं मेयर थी और कोई बुलाते हैं तो हम जाते हैं, उसका मतलब ये है कि हमने उनकी रीति रिवाज या एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं होता है। फोटो के जब भी वो लोग फोटो में आशीष शेलार भी किसको तो पेड़ा खिला रहा है, फोटो में है करके ये राजनीति करनी मुझे लगता है गलत है। जी, अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में ही है सब कुछ पेडनेकर मैडम, बट आप और जानकारी अगर हमें दे सके कि ये कब की तस्वीरें हैं, किस साल की तस्वीरें, और ये क्या इवेंट था जिसको आप अटेंड कर रही थी? मैं महापौर बनने के बाद ही होगी शायद, नहीं तो मेरे इसमें किसी के साथ कुछ ऐसे संबंध नहीं है। तो ये कब की तस्वीर है मैम? 2019 से लेके 2022 की होगी शायद। और किस चीज का इंटरेक्शन चल रहा था, अगर आपको याद है और आप कुछ बता सकते हैं, किस चीज की बातचीत चल रही थी, कौन सी मीटिंग थी ये? मैं फोटो देखे तो बोले ना बात। जी, अगर आप हमारा चैनल चलाएंगे हम आपको वो तस्वीरें फुल फ्रेम भी दिखा सकते हैं पेडनेकर मैम, इसीलिए हम जानना चाहते हैं ताकि क्लियर रहे मुद्दा, ताकि सवाल अगर उठाए जाए तो हम भी वापस बोल सके कि हमने किशोरी पेडनेकर से बात की और उन्होंने हमें सीधे तौर पे बताया कि ये इस टाइम की तस्वीर है। तो मैं देख सकती हूँ। जी, पर अगर राउफ मेमन की बात की जाए तो आप जानती थी कि वो भी उपस्थित है इसी मीटिंग में, क्योंकि वो याकूब मेमन के कजन है मैम। कौन? राउफ मेमन इन तस्वीरों में आपके साथ दिख रहे हैं, तो आपको जानकारी थी क्या कि वो इसी मीटिंग के हिस्सा लेने वाले हैं? नहीं, मुझे पता नहीं है, मुझे फोटो दिखाओ, उसके बाद मैं कह सकती हूँ। ऑनर है मैम फोटोज, अगर आप टाइम्स नाउ चलाएंगे आप तस्वीरें देख पाएंगी, हम वो पूरी तस्वीरें फुल फ्रेम आपके लिए चला देते हैं ताकि आपको पता चले हम कौन सी तस्वीरों की बात कर रहे हैं। आपसे क्लैरिफिकेशन आएगी तो सही रहेगा मैम, सवाल हमें भी पूछने में आसानी रहेगी। मैडम मैं देखती हूँ, आपको जवाब देती हूँ। मैम वो तस्वीरें आपको फुल फ्रेम हम दिखा रहे हैं। अब हमें ये बताइए कि राउफ मेमन और आप अगर एक ही फ्रेम में हमें दिख रहे हैं तो हम उससे क्या, व्हाट कैन वी मेक ऑफ इट मैम? क्या जानकारी दे सकती हैं आप इस मीटिंग के बारे में, क्योंकि ये कजन है याकूब मेमन के और याकूब मेमन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, किसी को उनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है मैम। मैं देखती हूँ, बात करती हूँ। मैम हम पिछले 5 मिनट में जब आप हमसे बात कर रही हैं, हम वो तस्वीरें अपने स्क्रीन पे चला रहे हैं, पूरी दुनिया पूरा देश ये तस्वीरें देख रहा है। अगर आप हमें सीधी तौर पे जानकारी दे पाएंगी तो हम भी सवाल आपसे ढंग से पूछ पाएंगे। हमें प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए कि अगर आप राउफ मेमन के साथ एक फ्रेम में दिख रही हैं, एक फंक्शन अटेंड कर रही दिख रही हैं, तो आप क्या जानती ही नहीं थी कि आप उनके साथ हैं? अरे मुझे देखने तो दो ना, पहला मैं रास्ते पे हूँ और फोन पे बात कर रही हूँ, मुझे हम आपको बता रहे हैं मैम, प्रूफ है, हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं कि राउफ मेमन दिख रहे हैं, आप भी उन तस्वीरों में दिख रही हैं, तो आप हमें बस ये बता दीजिए कि आप बोलेगी, मुझे देखने तो दो, मुझे देखने तो दो। मैं अभी व्हाट्सएप कॉल करो, मैं देख सकती हूँ। आप क्या ये बोल रही हैं कि आपकी जानकारी में आपने ऐसा कोई इवेंट, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया जहां पे राउफ मेमन भी उपस्थित हो? क्या आप मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है कभी? मैंने मना नहीं किया है, मैं पहली सच बात देखेगी उसके बाद ही बात करेगी।
मैं रास्ते पे हूँ। चलिए, आप अपना टाइम लेके देख लीजिएगा मैम, पर मैं आपको राउफ मेमन के बारे में पूछने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज, मैं ट्रैवल कर रही हूँ। ट्रैवल में मेरे पास स्क्रीन नहीं है, मैं देखती हूँ। मैम, आप अपना टाइम लीजिए, आप किसी और का फोन लेके देख लीजिए। 2 मिनट लगते हैं मैम टाइम्स नाउ चलाने में। यूट्यूब पे जाइए और हमारा चैनल खोल लीजिए। पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे सामने है वो तस्वीरें, हम झूठ क्यों बोलेंगे? आपसे बस 2 सवाल है मैडम। एक सवाल ये है मैम, एक सवाल, आप मेरे 2 सवाल सुन लीजिए करके कुछ भी बात मत करो। एक सवाल मैम बस ये है, मैं अभी देखती हूँ, उसके बाद मैं जो सच है वही बोलेगी। चलिए, आप अपना टाइम लीजिए मैम, बस 2 सवालों का सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, क्या आपकी जानकारी में था कि आप याकूब मेमन के कजन राउफ मेमन के साथ कोई फंक्शन अटेंड करने वाली हैं? पहला सवाल ये मैम। नहीं, मुझे पता नहीं है मैडम। मैं महापौर बनने के बाद कोई मेरे पास आए और बोले तो मैं गई भी होगी, मैं डिनाई नहीं करती हूँ। हाँ। लेकिन झूठ तो कभी नहीं बोलेगी, इसलिए मुझे पहला देखने दो। आप उसके बाद हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि ये 2019, 2020, 21 की बात है, हम आपसे साल भी नहीं पूछ रहे। आप अपना समय लेके देखिए तस्वीरें। पर क्या आपको जानकारी थी कि ऐसा कोई शख्स मौजूद है वहां पे? मुझे मैडम, मैं एकदम सामान्य फैमिली की लड़की हूँ, बहू हूँ, मुझे नहीं पता। मैं जब भी महापौर बनने के बाद कोई मेरे पास आया हो या बात कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलेगी। झूठ का सहारा कभी नहीं लिया है मैंने। नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आप झूठ बोलेंगी, हम तो इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप ही हमें बता दीजिए कि सच क्या है। हाँ, अभी मुझे पता है। मस्जिद का ये था, आशा मामेडी करके हमारी एक पदाधिकारी है, वो मुझे लेके गई थी। आप मेयर है, पानी भरा है अंदर, आप खुद देखो, आप कुछ कर सकते तो करो करके मुझे वो लेके गई थी। मैं झूठ नहीं बोलेगी। और तब आपकी जानकारी में नहीं था कि वहाँ राउफ मेमन करके कोई भी उपस्थित जानकारी थी? मुझे ये जानकारी नहीं थी। बाद में मैंने उनको बोला कि जो बीएमसी का पानी का जो प्रॉब्लम है मैं उनको भेज देती हूँ। और उसके बाद भी मिलने के बाद, वहां पे इंटरेक्शन करने के बाद हम देख रहे हैं कि सब एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं मैम। उसके बाद भी आपको नहीं पता चला कि कौन कौन उपस्थित है वहाँ? वो इंटरेक्शन नहीं हुआ, सच बोलेगी, नहीं हुआ। तो आप कह रही हैं कि आपको थ्रू आउट अभी तक आपको पता ही नहीं था कि आप एक मीटिंग अटेंड करके आई हैं और वहाँ पे राउफ मेमन मौजूद थे? हाँ, मुझे पता नहीं था। मैं किसी का नाम पूछ के नहीं बुलाया है, तब मैं गई ये पक्का है। और आपको जो लेके गया, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने भी आपको नहीं बताया कि कौन कौन मौजूद है मैम? नहीं, वो कौन कौन मौजूद वो मुझे नहीं हुआ है, लेकिन मेरी एक आशा मामेडी करके जो लेडी है हमारी, वो लेके गई थी, ये पक्का है, वो पक्का है। और उन्होंने भी आपको नहीं बताया कि कौन कौन उपस्थित है वहाँ, किससे आप जाके मिलने वाली है? इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। और यशवंत यादव भी है उसके साथ, यशवंत यादव भी है, सब लेके मुझे गए। अब अगर आप वो तस्वीरें देख सकती है तो आप बता सकती है कब की है ये तस्वीरें? अभी बोलते हैं मैं क्या, यशवंत यादव है, आशा मामेडी है, और उन्होंने मुझे मेयर करके लेके गए। हाँ। और मुझे ये इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं मेयर करके गई है, मैंने डिनाई किया नहीं, लेकिन इंट्रोडक्शन ये नहीं हुआ, मुझे पता नहीं। और मैं एक सामान्य घर से हूँ, इतनी तो बड़ी बड़ी कि आप गई और आपका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, आप किस किस से मिली वहां पे? नहीं, खाली नाम ऐसा उसका रिलेटिव, ये इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। यशवंत यादव भी थे जो अभी शिंदेगढ़ में है। नहीं मैम, सवाल तो हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं ना, हम सिर्फ आप ही से जानकारी ले सकते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। और अगर आप ये तस्वीरें आप देख रही हैं जो आप हमें बता रही हैं, तो अब थोड़ा और जानकारी दे देंगे किस साल की तस्वीरें हैं ये? 2019 से लेके 2022 तक मैं जब भी महापौर बनी तभी ऐसे लोगों के साथ ये लोगों ने मिलाया है मुझे। मैं बड़ी हस्ती नहीं है, पानी का प्रॉब्लम हुआ था, पानी भरा हुआ था, तभी वो लोग लेके गए थे। मैम, आप मेयर थी तब, क्या आप नहीं समझती कि ये आपका कर्तव्य था कि आपको पता रहे, या आपकी टीम ही आपको जानकारी दे कि किससे जाके आप मिल रही है? मैम,
1993 मुंबई ब्लास्ट के मेन कॉन्स्पिरेटर की बात कर रहे हैं, उनका भाई बैठा है इन तस्वीरों में आपके साथ। बैठा भी होगा, लेकिन मुझे इंट्रोड्यूस ऐसा नहीं हुआ और मैं किसी का क्या रिलेशन नहीं पूछा। जो काम था, जो यशवंत यादव और मामेडी लेके गई, ये तो मैं बता रही है ना। अच्छा। और मेरे नेता थे, वो उपनेता थे, उनका सुनना जरूरी था। मुझे ये मुद्दा पेदनेकर मैम, ये मुद्दा इसीलिए बाहर आया है क्योंकि याकूब मेमन की जो ग्रेव है वो इतनी सुंदरता से जो सजाई गई है उस पे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल बीएमसी से भी उठ रहे हैं। मैडम, सब होगा, भाजपा भी पूछ रही है और आप उनको जवाब दे दीजिए कि आप टाइम्स नाउ पे बात कर रहे हैं, तो आप ये जवाब दे दीजिए कि जो बीएमसी पे सवाल उठाया जा रहा है कि वो ही रिस्पॉन्सिबल थे ब्यूटिफिकेशन के लिए, आप तब मेयर रही थी, तो आपकी नॉलेज में नहीं था, आपको पता नहीं चला ऐसा कुछ हो रहा था? नहीं, मुझे पानी भरा था, इसलिए वो यशवंत यादव और मामेडी लेके गई। अभी यशवंत यादव के ऊपर सवाल नहीं उठ रहा है क्योंकि वो शिंदे गट और अमित शाह का गट है, वो उसके लिए उनके ऊपर सवाल नहीं है, मेरे ऊपर है। तो मैं कहती हूँ कि मैं सामान्य फैमिली से हूँ। अच्छा। मेरे काम के तरीके में लेके गए, काम का बात हुआ, मैंने किसी का रिलेशन नहीं पूछा, ना किसी का नाम पूछा। चलिए पेडनेकर मैडम, ये बता दीजिए क्योंकि 2019 के बाद अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो विटनेसेस बाहर आके बोल रहे हैं, जो वहां पे बड़ा कब्रिस्तान के मेंबर्स भी रहे थे 2019, 20, 21 के दौरान, उन्होंने बोला है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को भी ये बताया था कि ऐसे पैसे देके मॉडिफिकेशन हो रही है और बीएमसी रिस्पॉन्सिबल है मॉडिफिकेशन के लिए। तो आपके पास क्या जानकारी थी तब पेडनेकर मैडम? मेरे से पास खाली पानी भर रहा है इधर, मैडम आपको आना पड़ेगा, आप चलो करके लेके गए थे। नहीं, मैं आपसे चलिए आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे याकूब मेमन के ग्रेव की बात कर रही हूँ। तब आपके पास क्या जानकारी थी? तब भी तो आप मुंबई मेयर थी। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं ऐसे कार्यक्रम मैंने जब भी बुलाया तो मैं गई, लेकिन मैंने किसी का रिलेशन या नाम ये नहीं, इतनी जानकारी मुझे नहीं। पर उस दौरान मैडम, उस दौरान क्या बीएमसी नहीं देख रहा था जो भी ब्यूटिफिकेशन, जो भी काम चल रहा था बड़ा कब्रिस्तान की ग्रेव मैंने पूछा उनको तो उन्होंने कहा कि हम नहीं देखते, वो वक्फ बोर्ड का है। नहीं। अच्छा, बीएमसी का कोई रोल नहीं था आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। और आपके पास कोई भी जानकारी आई थी? क्योंकि ऐसी कंप्लेंट पुलिस के पास भी पहुंची थी, आपको कोई आके आपको किसी विटनेस ने कुछ भी बोला था? नहीं जानकारी, नहीं। तो आप कह रही है ये मुद्दा आपके सामने अभी आया है क्योंकि अभी उठा है, तो आप भी इसके बारे में अभी सुन रही है? अब भी पता चला, और आपने मुझे अभी, मैं एक सहेली के घर में आई है तो टीवी चलाया, तभी मुझे पता चला। अच्छा, बिफोर आई लेट यू गो मैम, व्हाट क्लैरिफिकेशन विल यू गिव? एक सेंटेंस में हमें बता दीजिए, जो तस्वीरें हम चला रहे हैं राउफ मेमन अभी और आप एक इवेंट अटेंड कर रही हैं, एक फाइनल क्लैरिफिकेशन दे दीजिए क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं। मैडम, महापौर है तो मैं हमारे यशवंत यादव और आशा मामेडी करके लेके गई, मेरे पदाधिकारी है करके मैं गई, ये मैं डिनाई नहीं कर रही है। फोटो नहीं होता तो भी मैं डिनाई नहीं करेगी, क्योंकि महापौर बनने के बाद एक लोक प्रतिनिधि भी होते हैं और लोगों के साथ जो मेरे पार्टी के लोग बोले तो मैं जा सकती हूँ, और मैं गई। चलिए ठीक है, थैंक यू किशोरी पेडनेकर, दैट्स द फॉर्मर मुंबई मेयर।